Hello and welcome back to my channel. This is Dr. Arshia, and this video is going to be about what are the previous year important topics for the subject of public health dentistry for NEET MDS. So let's start. Since there is no synopsis for public health dentistry in the Dental Pulse, you can either read it from Sobhan Peter, and some colleges also follow CM Maria. You can read it from there, or you can follow Vivek Jain. Instead of the synopsis from the Dental Pulse, you can read some of the topics from any of these three books, or you can read the explanations of the questions given in the Pulse only. Majority of the topics are covered in the explanation of the questions in the Dental Pulse. So refer to these books only if you need to see some diagrams or you need to read some additional information. Starting with biostatistics, the first thing you have to read is टेस्ट. इसके अंदर 2 टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट जो कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं. इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं कि 1 वे नोवा टेस्ट क्या है, 2 वे नोवा टेस्ट क्या है, स्टूडेंट टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट एंड फिशर एग्जैक्ट टेस्ट. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द टेस्ट. सो इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस हैं टेस्ट के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल कि इफ़ दे हैव गिवन यू 3 ग्रुप्स देन व्हाट टेस्ट विल यू यूज़ टू इवेल्यूएट डिफरेंसेस, या फिर जो भी कंक्लूजन आए हैं उनको आप कैसे इवेल्यूएट करोगे, विद व्हाट टेस्ट, कौन सा टेस्ट आप यूज़ करोगे. सो इफ़ फॉर एग्जांपल इफ 3 और मोर ग्रुप्स आर गिवन, सो यू विल यूज़ अनोवा. और अगर आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया तो यू विल यूज़ 1 वे अनोवा. इफ दे गिवन 2 वेरिएबल्स देन यू विल यूज़ 2 वे अनोवा. So this is how they have given the examples, and this is how you have to solve the questions for the non-parametric and the parametric tests. Second topic important in biostatics is sampling. जैसे इसमें डायग्राम में दिखाया कि there are 2 methods, probability sampling methods and non-probability, and 4 are the types of probability and 4 are the types of non-probability. So इसके ऊपर based questions है कि they'll give you an example जिसमें आपको find out करना है कि इसमें हम कौन सी टाइप ऑफ सैम्पलिंग यूज़ कर सकते हैं, या फिर मल्टी फेज सैम्पलिंग क्या होती है, या फिर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होती है, एंड व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड यूज फॉर सैम्पलिंग. एंड इफ द सैम्पल नंबर इज स्मॉल देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज गुड, मतलब दिस इज द आइडियल मेथड. बट इफ द सैम्पल इज वेरी लार्ज देन द स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज द मोस्ट आइडियल मेथड ऑफ सैम्पलिंग. So these are 2 of the previous year questions जो कि काफ़ी रिपीट हुए हैं. एंड ऑल्सो 2 important questions on this is कि मल्टी स्टेज और मल्टी फेज के ऊपर भी काफ़ी questions हैं, because this is quite confusing. So just see these 2 questions कि मल्टी फेज क्या होता है एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होती है. तो थर्ड टॉपिक जो कि बायोस्टैट्स में इंपॉर्टेंट है इज द टाइप ऑफ स्केल्स. सो देयर आर 4 स्केल्स: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो. जिस इसमें एक एक पॉइंट लिखा हुआ है फॉर द डेफिनेशन और फॉर अंडरस्टैंडिंग. You can make difference in 4 of these कि इन चारों में difference क्या है, and you have to remember their examples क्योंकि इन examples के ऊपर भी काफ़ी questions हैं. Next topic is measures of central tendency. इसमें you have to read mean, median and mode, and along with this you have to read जो कि normal distribution का curve है, उस curve की shape क्या होती है, उसकी first, second और third limit क्या होती है, standard मतलब उसकी first, second और third standard deviation क्या है, standard deviation की definition क्या है, Z-score क्या है. So these are the important questions from the measures of central tendency. And there is also an important formula for calculating the standard deviation जो कि sample size पर depend करती है. If the sample size is larger, the standard deviation will be lower, and if the sample size is smaller, then the standard deviation will be larger. और कब जो ग्राफ है वो लेफ्ट साइड को डेविएट करेगा या राइट साइड को डेविएट करेगा, मीन मीन किस सिचुएशन में ज़्यादा होगा, मॉड किस सिचुएशन में ज़्यादा होगा, या फिर वो इक्वल किस सेंटर में होंगे जो कि उसकी पीक होती है, वहाँ पे मीन, मीडियन, मॉड आर इक्वल एंड आर इक्वल टू 0. नेक्स्ट टॉपिक इज डाटा प्रेजेंटेशन की सिंपल टेबल क्या है, मास्टर टेबल क्या है, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बार, and what is a histogram, what is a pie diagram, and what is a frequency polygon, and what is a scatter dot, and what is a box whiskers plot. box whiskers plot के ऊपर भी काफ़ी questions हैं, but उसके ऊपर ज़्यादा INICT में questions हैं, NEET MDS में बाकी सब topics पे questions हैं. So box whisker plots is important for INICT,
बट बाकी सारे आपको डायग्राम्स देके पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस डायग्राम एंड व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डाटा प्रेजेंटेशन, और मास्टर टेबल और सिंपल मास्टर टेबल में क्या फ़र्क होता है, एंड व्हाट इज़ अ पाई डायग्राम, व्हाट इज़ अ हिस्टोग्राम, व्हाट इज़ अ बार डायग्राम. So all these questions are important in data presentation. Next important topic is types of errors. कि null hypothesis क्या है, when we will reject the null hypothesis तब कौन सा type of error होगा, and when the null hypothesis is not rejected but it is true तब कौन सा type of error होगा, या फिर vice versa. So this table is important. So बाकी के जो important topics biostatistics में हैं, that is matching, some other type of scales, and data collection methods. Data collection methods are प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड्स. सेकेंडरी मेथड्स आर कि ऑलरेडी हमने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, हम ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा से कुछ डाटा वी आर गैदरिंग. फॉर एग्जांपल जो कि हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं, हम उनसे डाटा निकलवा रहे हैं, या फिर ऑलरेडी कोई रिसर्च हुई थी, हम अपनी नई रिसर्च करने के लिए पिछली रिसर्च के डाटा को यूज़ कर सकते हैं. एंड इन केस ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड इट कुड बी इंटरव्यूज़ और फोकस ग्रुप्स, or social media monitoring, questionnaire form of thing, surveys and forms. So these kind of things in the case of data collection methods. So two other type of scales are Likert scale and Guttman scale. अब Guttman scale is kind of a scale जिसमें आपको yes or no questions हैं, kind of. You can say, you can ask the patient, do you drink alcohol? So it could either, that person could either answer as yes or no. Or do you smoke? So yes or no. And Likert scale is a little different. इसमें ऐसे होगा कि you have given some person a statement and they disagree with it, or strongly disagree, or neither disagree or agree, or they strongly agree with the statement. So these kind of things in the Likert scale. Guttman is either yes or no questions, but Likert scale is a little more. Epidemiology में first topic जो important है, that is different epidemiological studies. So there are observation studies and experimental studies. Observation में आगे descriptive है and analytical है. Analytical is further divided into 4: case control, cohort, cross-sectional and ecological studies. You have to remember everything about cohort and cross-sectional studies क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा questions हैं. And one point important in case of ecological study is the unit in case of ecological study is population, and for rest of the study the unit of sampling or the unit of the study is one individual, but in ecological studies the unit is population. So this is an important question. And in case of experimental or intervention studies there are three kind: the RCTs, that is randomized control trials, field trials and community trials. इन्हीं studies के अंदर और important चीज़ क्या है कि you have to remember कि कौन सी स्टडी के अंदर हम कौन सी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और इन रेशियोज़ को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है. सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज यू हैव टू रिमेंबर कि एंडेमिक डिजीज़ क्या हैं, एपिडेमिक डिजीज़ क्या है, एंड पेंडेमिक डिजीज़ क्या है. इन तीनों के डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, और इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन हैं. ऑल्सो वन अदर टाइप इज कि स्पोरैडिक डिजीज़ क्या होते हैं. सो यू शुड नो व्हाट ऑल 4 of these terms mean. Next is tobacco में important है कि smoking forms क्या क्या हैं tobacco की, और smokeless forms क्या हैं tobacco की, और कौन से region of India के अंदर smokeless tobacco ज़्यादा मतलब smokeless tobacco ज़्यादा यूज़ करते हैं, कौन से में smoking tobacco ज़्यादा कहाँ यूज़ करते हैं, और reverse smoking क्या होती है, ठीक है, और इसकी और कैसे कैसे प्लेस करता है पेशेंट, ठीक है, वो सब चीज़ें भी आपको tobacco में करनी है. नेक्स्ट इज कि बायस क्या है, कौन कौन सी स्टडी के अंदर कौन सा बायस हो सकता है. एक और क्वेश्चन है व्हाट इज हॉथॉर्न, आई थिंक स्पेलिंग्स ही हैं. हॉथॉर्न बायस क्या होता है. इसकी एक एग्जांपल है कि मैनुअल टूथब्रशिंग वर्सेस इलेक्ट्रिक टूथब्रश, कि कौन से टूथब्रश के रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर हैं, इधर मैनुअल और इलेक्ट्रिक टूथब्रश. अब इसमें क्या होता है, बिकॉज द पॉपुलेशन इज़ अंडर सर्वेलेंस, मतलब क्या होता है कि पेशेंट को पता है कि आई एम बीइंग ऑब्जर्व्ड. सो उसमें इफ़ द पेशेंट इज़ यूजिंग इलेक्ट्रिक टूथब्रश, सो द पेशेंट गिव्स मोर अटेंशन और पेज मोर अटेंशन टुवर्ड्स ब्रशिंग if he or she is using an electric toothbrush, and in case of manual it is giving less attention. So this is kind of a Hawthorne basis कि patient
knows that he is under observation and he's doing certain things because of that. So इसकी एक एग्जांपल है कि यूजिंग अ मैनुअल टूथब्रश और इलेक्ट्रिक टूथ, क्योंकि मैनुअल इलेक्ट्रिक टूथब्रश में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है. इट इज़ जस्ट दिस कि when the patient uses an electric toothbrush, then he or she feels that my oral hygiene is better now because I'm using an electric toothbrush. Other bias are कि selection bias क्या है, information bias क्या है, that the जो भी observer है that already knows कि हम किस चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे हैं and what are the control group और disease group क्या है. So these are the biases. So to prevent biases, we do something called as blinding. So इसकी भी 2-3 टाइप्स हैं कि प्राइमरी बाइंडिंग क्या है, सेकेंडरी बाइंडिंग क्या है एंड टर्शरी बाइंडिंग क्या है. सो दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. व्हाट इज प्राइमरी बाइंडिंग, सेकेंडरी एंड टर्शरी बाइंडिंग. मतलब प्राइमरी बाइंडिंग इज बेसिकली सिंगल, दिस इज डबल एंड दिस इज ट्रिपल बाइंडिंग. फर्स्ट इज कि जो भी आपके कंट्रोल ग्रुप्स हैं या जो आपका डिजीज ग्रुप है, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर अंडर, मतलब व्हाट दे आर, व्हिच स्टडी दे आर अंडर. एंड सेकेंडरी इज आपके ऑब्जर्वर को नहीं पता. एंड थर्ड इज ना तो आपके पेशेंट्स या फिर कंट्रोल ग्रुप को पता है, ना ही ऑब्जर्वर को पता है, और ना ही इन्विजिलेटर है जो उसे पता है कि व्हाट इज, कि कौन सा कंट्रोल ग्रुप है या फिर कौन से कंट्रोल, अगर हम कंट्रोल ग्रुप को कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं या फिर डिजीज ग्रुप को कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो हम ब्लाइंडिंग के लिए करते हैं ताकि बायस ना आए हमारा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन. दिस इज, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो हर साल आते ही आते हैं. सो यू हैव टू रीड दिस वेरी थरली, क्योंकि इससे ये है कि आपको लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन ऐसे पूछ सकते हैं कि माल ओक्लूजन के लेवल ऑफ प्रिवेंशन में एक स्पेसिफिक पूछ लेंगे कि अगर हम ये स्पेस मेंटेनर दे रहे हैं तो हम, अगर स्पेस मेंटेनर दे रहे हैं तो वो कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है. ठीक है. एंड इन केस ऑफ ओरल कैंसर एंड अदर डिजीजेस, उसके अंदर लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये आपको अच्छे से याद करना है. देयर इज़ वन अदर क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन. प्लीज़ रीड दिस, क्योंकि इससे भी 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट है. व्हाट इज़ प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन अलॉन्ग विद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी levels of prevention. Next is phases of trials कि what are the 4 phases, phase 1, 2, 3 and 4. कितने number of individuals are involved in first phase and in the second phase and in third and in fourth. So ये भी important है. What are the phases of trials. Next is hierarchy of scientific evidence. इसमें आपको याद रखना है कि the strongest is the meta-analysis and the weakest are the case reports, opinions, papers and letters. और इसमें कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस हैं कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स के बाद कौन सी स्टडी आती है या फिर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से पहले क्या आता है. सो दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. नेक्स्ट इंडाइसिस के अंदर दीज आर दी इम्पॉर्टेंट इंडाइसिस जो कि मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से मिले हैं, और सबसे ज़्यादा इस पे क्वेश्चंस हैं डीन्स फ्लोरोसिस पे, एंड देयर आर ऑल्सो सम क्वेश्चंस फ्रॉम रसल्स PDL इंडेक्स. सो ये भी आपको अच्छे से करना है. दीज 2, ये दोनों तो बहुत अच्छे से करने हैं. एंड ऑल्सो 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट नीड्स. ठीक है. बाकी OHIS एंड दिस इज़ वेरी ईजी, जिंजाइवल इज़ वेरी ईजी, प्लाक इज़ ऑल्सो वेरी ईजी, एंड अ लिटिल CPITN. और इसका प्रोब कौन सा यूज़ होता है, इसके प्रोब के ऊपर भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन है. एंड यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर कि WHO प्रोब कौन सा है एंड मिचिगनो प्रोब कौन सा. ये ज़्यादा वैसे पेरियो में इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी अगर आप PhD में भी कर लेते हो तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू डू इट इन पेरियो एज वेल. सो आप यहीं पे कर सकते हो कि द टाइप ऑफ प्रोब्स या फिर प्रोब्स के डायग्राम्स या फिर प्रोब्स दिखते कैसे हैं, मिचिगनो प्रोब एंड मिचिगन यूनिवर्सिटी प्रोब. एंड DMFT इंडेक्स के अंदर क्या है कि नए रूल्स क्या हैं, जो पुराने वाला DMFT था उसके अंदर क्या था और जो नया आया उसके अंदर, दोनों के अंदर मेनली क्या चेंजेस हैं. सो DMFT के अंदर वो इम्पॉर्टेंट है. सो फर्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट इन प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री इज़ फ्लोराइड्स. ये सबसे 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 ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक है फ्लोराइड्स का, और ये तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते. तो फ्लोराइड्स में ये जो टेबल आपको दिख रहा है, दिस यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, क्योंकि इससे बहुत 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 ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं
कि सोडियम फ्लोराइड कितने ज़्यादा कैरीज रिडक्शन करता है, स्ट्रॉन्शियम फ्लोराइड कितना कैरीज रिडक्शन करता है, और APF जेल कितनी कैरीज रिडक्शन करती है, इनकी कंसनट्रेशंस क्या हैं, और इनके अंदर कितना ppm ऑफ फ्लोराइड होता है. सो दिस टेबल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और इसमें नट्स एंड टेक्निक क्या होती है, और APF जेल के लिए हम कौन सी पेंट टेक्निक यूज़ करते हैं, या फिर ट्रे टेक्निक हम कौन से फ्लोराइड के अंदर यूज़ कर सकते हैं. दीज आर ऑल दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अदर थिंग यू कैन डू इन फ्लोराइड इज़ कि इनके अलग से टेबल्स हैं कि ADA के अकॉर्डिंग कितनी रूटीन या फिर डेली इनटेक ऑफ फ्लोराइड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप्स. सो दिस इज़ द टेबल अकॉर्डिंग टू कि अगर ड्रिंकिंग वाटर के अंदर इतना लेवल ऑफ फ्लोराइड है तो शुड यू बी गिविंग द चाइल्ड सम फ्लोराइड सप्लीमेंट्स और नॉट. दिस टेबल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन मेक नोट्स ऑफ दिस. ये आपको अपनी बुक्स में भी मिल जाएगा, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस टेबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 0.5 ppm ड्रिंकिंग वाटर के अंदर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन है तो, और आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि चाइल्ड की एज क्या है. सपोज द एज ऑफ द चाइल्ड इज़ 5 years. So if the age of the child is 5 years and the concentration of fluoride is 0.5 ppm, तो हम पेशेंट को 0.25 mg पर डे देंगे फ्लोराइड की सप्लीमेंट डेली. So this is how you have to do the questions. Or for example, if the child is 4 years old or the fluoride concentration in the drinking water is less than 0.3 ppm, so in उस केस के अंदर we will only give the child 0.5 mgs per day. Next important topic in case of fluoride is कि fluoride, what are fluoride varnishes और इसके अंदर कौन कौन से types हैं, और डिफ्लोरिडेशन क्या होती है, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, नालगोंडा टेक्निक क्या है, वो कब आई थी, उसके अंदर हम क्या प्रोसेस करते हैं. द सॉल्वेंट डिफ्लोरिडेशन इन केस ऑफ वार्निशेस, व्हाट इज़ ड्यूराफैट, उसके अंदर कितनी कंसनट्रेशन फ्लोराइड की होती है, व्हाट इज़ फ्लोर प्रोटेक्टर, व्हाट इज़ कैविटी शील्ड, व्हाट इज़ ड्यूराफ्लोर. सो यू हैव टू डू दिस टेबल कि इसके अंदर फ्लोराइड की कंसनट्रेशन मेनली कितनी है. इसमें क्वेश्चन इसी के ऊपर है. ड्यूराफैट में कितनी कंसनट्रेशन है, फ्लोर प्रोटेक्टर में कितनी है, कैविटी शील्ड में कितनी है, ड्यूराफ्लोर में कितनी है. सो दिस नेक्स्ट टॉपिक इज़ कुछ स्टडीज़ इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि वेपर होम स्टडी, होपवुड स्टडी, टुर्को शुगर स्टडी. इन स्टडीज़ के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर बच्चे कितने लिए गए थे, उनका एज ग्रुप क्या था कि 13 to 14 ईयर्स थे या 5 to 7 ईयर्स थे, या फिर कितने साल जो स्टडी चली थी, और क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किए थे. फॉर एग्जांपल कि शुगर यूज़ करी थी, फ्रक्टोज क्या यूज़ किया था, और उस स्टडी का कंक्लूजन क्या था, या फिर हाइपोथेसिस क्या थी कि वो क्या प्रूव करना चाह रहे थे. सो दिस ऑल यू हैव टू रिमेंबर इन केस ऑफ दी स्टडीज़. या फिर इनका स्टडी ईयर क्या था कि कौन सी, मतलब कब ये स्टार्ट हुई थी और कब एंड हुई थी. दैट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स ओनली, बट यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर कि कब ये स्टार्ट हुई थी और कब ख़त्म हुई थी, एंड कहाँ पे हुई थी, नेम ऑफ द प्लेस एज वेल. दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि फ्लोराइड्स में प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री में है. नेक्स्ट यू ऑल्सो हैव टू स्टडी पिट एंड फिशर सीलेंट्स. फिट एंड फिशर सीलेंट्स, इनके टाइप्स क्या होती हैं और कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है. उसके बाद शुगर सब्स्टिट्यूट्स क्या क्या हैं, ज़ाइलोटॉल क्या है, और बाकी की हम शुगर सब्स्टिट्यूट्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इस पर भी 2-3 क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट इज कैरीज एक्टिविटी टेस्ट. इसमें कि नाइडर टेस्ट क्या होता है, लैक्टोबैसिलर टेस्ट क्या होता है, स्वैब टेस्ट क्या है, और सिलाइवरी रिडक्टेज टेस्ट क्या है. ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें से एक या दो ही क्वेश्चंस हैं. यू कैन ऑल्सो you just have to read a bit about this topic. Next is waste management. Waste management is also very important कि एक तो कलर कोडिंग इज फर्स्ट इज कलर कोडिंग कि कौन कौन से बैग्स जो हैं उनमें क्या क्या हमारा वेस्ट जाता है. सो कलर कोडिंग ऑफ द वेस्ट बैग्स, कलर कोडिंग ऑफ द बैग्स. नेक्स्ट इज कि व्हाट आर दी स्टेप्स इन द वेस्ट मैनेजमेंट, कि ट्रांसपोर्टेशन पहले आता है या फिर सेग्रीगेशन पहले कर सकते हैं. तो ये भी आपको ऐसे बता सकते हैं, मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है. यू हैव टू अरेंज इन सीक्वेंस कि सबसे पहला स्टेप वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, एंड व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपोस्टिंग, व्हाट इज़ इंसिनरेशन, व्हाट इज़ डंपिंग,
सो ये सब चीज़ें आपको वेस्ट मैनेजमेंट में करनी है. ऑल्सो सम क्वेश्चंस अबाउट वाटर की प्योरिफिकेशन कैसे करनी है, क्लोरिनेशन कैसे करनी है, व्हाट इज़ ब्रेक पॉइंट इन केस ऑफ क्लोरिनेशन, और उसके बाद कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, कितने टाइम के लिए रखते हैं हम, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, और कौन कौन से टेक्निक यूज़ करते हैं हम क्लोरिनेशन के लिए. उसके बाद हार्डनेस ऑफ वाटर पे भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, और कौन से कंपोनेंट्स या फिर कौन से एलिमेंट्स की वजह से हार्डनेस होती है, और हम हार्डनेस को रिमूव कैसे कर सकते हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या क्या जो प्रोसेसेस हैं वो कैसे करनी है. वाटर की फिल्टरेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि वाटर की फिल्टरेशन कैसे है. नेक्स्ट डेंटल मैन पावर में कि ऑपरेटिंग डेंटल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं और नॉन ऑपरेटिव डेंटल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं. स्कूल डेंटल नर्स क्या होती है, ये प्रोग्राम कहाँ पे शुरू हुआ था, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, न्यूजीलैंड में स्टार्ट हुआ था, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ स्कूल डेंटल नर्स, व्हाट आर द प्रोसीजर्स दैट अ स्कूल डेंटल नर्स कैन परफॉर्म, एंड ऑपरेटिंग कौन कौन से ड्यूटीज़ या फिर कौन कौन से प्रोसीजर्स कर सकते हैं. जैसे डेंटल असिस्टेंट है वो कौन से प्रोसीजर्स कर सकता है, या फिर जो नॉन ऑपरेटिंग है वो तो बिल्कुल ही क्लिनिकली नहीं कर सकते, मतलब पेशेंट के ऊपर नहीं ऑपरेट कर सकते हैं. बट व्हाट आर दी अदर प्रोसीजर्स दैट आर नॉन ऑपरेटिंग dental auxiliary can do. Some miscellaneous topics which are left now are कि सर्वेज क्या हैं. सर्वेज के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वेज, फॉर एग्जांपल पाथवे सर्वे, नेशनल पाथ फाइंडर. नेशनल पाथ फाइंडर के अंदर एक एज ग्रुप इम्पॉर्टेंट है कि 5 ईयर्स के ऊपर हम स्टडी करते हैं, 12 ईयर्स पे, 15 ईयर्स पे, 35 to 44 एज ग्रुप पे, एंड देन 65 to 74. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. उसके बाद वर्कर लेवल्स ऑफ वर्कर्स की विलेज लेवल वर्कर है, उसके अंदर आगे लोकल दाइज आ जाती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं. सो दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज IDA और DCI. इसके अंदर दी नंबर ऑफ मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, एफिलिएट मेंबर्स क्या हैं, स्टूडेंट मेंबर्स क्या हैं, एनुअल मेंबर्स क्या हैं. सो और IDA के अंदर क्या क्या आपके जो कि कॉलेजेस के डीन्स आते हैं, या फिर कॉलेज का स्टाफ होता है, या फिर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, या फिर इसकी मेंबरशिप कितने साल की होती है, या फिर आप कैसे मेंबरशिप बाय कर सकते हो, और कब जो है वो DCI फॉर्म हुआ था और कब IDA फॉर्म हुआ था. इसके ईयर्स पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट वो INICT के लिए इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर नीट. उसके बाद देयर आर सम कमेटीज, जैसे भोरे कमेटी है कि इन्होंने कब कौन सा काम किया था, कौन से ईयर में काम किया था, that you have to do. And then occupational hazards क्या क्या हो सकते हैं and how you have to prevent it, और क्या क्या OSHA guidelines हैं, you have to remember all the guidelines of the OSHA. और उसके बाद है कि types of dental examination क्या है, types of dental examination according to ADA. So there are 4. इन 4 types में first type के अंदर हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं. वी यूज़ माउथ मिरर, एक्सप्लोरर एंड लाइट एंड फुल, जो भी IOPRs यूज़ कर सकते हैं. सेकंड के अंदर हमारे पास लिमिटेड एग्जामिनेशन करते हैं हम. वी यूज़ माउथ मिरर्स, एक्सप्लोरर एंड सम बाइट विंग रेडियोग्राफ्स. और थर्ड इज़ इंस्पेक्शन, वी ओनली यूज़ माउथ मिरर्स एंड एक्सप्लोरर एंड सम लाइट. एंड फोर्थ इज़ सिर्फ हम एक टंग डिप्रेसर यूज़ करते हैं एंड लाइट. ओके, सो दिस क्लासिफिकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देन इज़ मेथड ऑफ पेमेंट या फिर मेथड ऑफ रीइम्बर्समेंट्स की डेंटिस्ट को रीइम्बर्समेंट कैसे होती है. फॉर एग्जांपल प्राइवेट फ़ी फॉर सर्विस, और पोस्ट पेमेंट, या फिर ग्रुप इंश्योरेंस, या फिर कस्टमरी फ़ी, या फिर टेबल ऑफ अलाउंसेस. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन केस ऑफ रीइम्बर्समेंट्स. नेक्स्ट इज एथिक्स के ऊपर यू हैव टू डू सम क्वेश्चंस कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं एथिक्स के. नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस ART के ऊपर भी हैं, एटोमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट के ऊपर, कि what are the indications and what are the contraindications of ART. This is also a question कि ART के अंदर हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं. Other miscellaneous topics are वैक्सीन्स के ऊपर क्वेश्चंस है, और शेड्यूल क्या होता है सर्टेन वैक्सीन्स का, वो यू हैव टू रीड. एंड देन हेल्थ कम्युनिकेशन में, इन हेल्थ कम्युनिकेशन
You have to reach individual approach, group approach, mass media approach. उसका जो अलग से एक टेबल है, that you have to remember. And then 5 R's and 5 A's. इसका सीक्वेंस पूछ लेते हैं कभी कभी. And then criteria used for evaluation of dental services according to WHO in 1972. So इसके 4 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट है इफेक्टिवनेस. इनमें यू हैव टू नो द डिफरेंस की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस और इनकी डेफिनेशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस हैं. appropriateness and fourth is adequacy. So this is another previous year important. उसके बाद कुछ प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि शार्प. इसकी आपको फुल फॉर्म्स याद करनी है और एक एक 2-2 पॉइंट्स याद करने हैं कि इसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं. टैटल टूथ प्रोग्राम है. उसके बाद स्माइल ट्रेन, थीटा एंड कोलगेट्स ब्राइट स्माइल्स एंड देन ब्राइट फ्यूचर्स प्रोग्राम्स या फिर एस्कॉफ प्रोग्राम, ये भी आपको याद करना है. अदर मिसलेनियस टॉपिक्स में है हेल्थ बिहेवियर मॉडल्स. इसके अंदर काफ़ी टाइप ऑफ मॉडल्स हैं जो कि आपको डायग्राम्स हैं वो आपको याद करना है. सपोज हेल्थ बिलीफ मॉडल है, ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल है, या फिर स्टेजेस ऑफ चेंज है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है, सोशल इकोलॉजिकल मॉडल है, थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन या फिर थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर. सो दीज आर ऑल द थ्योरीज या फिर जो भी हेल्थ बिहेवियर मॉडल हैं. इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन हैं. बाकी जो और 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो है आइसबर्ग फिनोमेना. उसका जो डायग्राम है वो करना आपको. उसके बाद ये हमने कर लिया कि हायरार्की ऑफ साइंटिफिक एविडेंस का सीक्वेंस इज इम्पॉर्टेंट. उसके बाद टाइप्स ऑफ एसोसिएशन पे भी क्वेश्चन है. टाइप्स ऑफ एसोसिएशन की स्पूरियस एसोसिएशन क्या होती है, डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, और टेम्पोरल एसोसिएशन क्या है. सो यू शुड नो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स. आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री. आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड आई होप दिस वॉज अप टू दी पॉइंट और आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ ये वीडियो देख के. एंड आई विल ट्राई कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी ऐसे वीडियो बना दूँ. So if you have any other doubts या फिर आपको और कुछ पूछना, you can comment below or you can text me on my Instagram and I will see you in next video. Bye bye.